take it from your tuition classes, you take it from your school, wherever you can understand it. Go to a bookstore. यहाँ पे नहीं, थोड़ा मेहनत करो, ढूंढ लो. पापा तो बोलो मुझे किताब खरीदने जाना है, चले जाओ. Take 4-5 references, open it, find it. Okay, this topic I understood. Read it from it. दो लाइन, जो language easy लगता है उस किताब को खरीद लो. Class 11 का NCERT is not sufficient for physics. Clear? Class 12 का सब physics का NCERT is not sufficient. अभी clear होना? Class 12 का chemistry NCERT is more than sufficient. You don't need help. You don't need references. I'm talking about your school classes. I'm not talking about coaching and entrance and everything. NCERT is more than enough. Even if you go for your entrances after this, then also NCERT will be your base for class 12 chemistry. Nothing. वो सब मैं दे दूँगा. Don't worry. We'll give it to you. We'll give you the whole solutions, question and answers. We'll give you the questions. We'll give you the practice paper. You are spending here. No question is your turn. You're money. So that's done. Physics, you need help. So first, buy a book. That is, I am telling you from my experience. For a different student, it can be different. कि मुझे physics easy लगता है, chemistry hard लगता है, हो सकता है. But just do that. Clear हो गया? Physics. Bio, never reference. No references at all. Textbook only. Marker आता उठा के, highlighter आता उठा के, कोई जब भी important mark को ले जा. रोगान नीला को टेक किताब. That's the only solution of reading. 2 chapters you needed genetics and molecular inheritance. इनका करने केमिकल सपोर्ट को जेनेटिक नंबर आजकल तो बहुत फॉलोज हो. When we were kids उस टाइम ना YouTube था ना कुछ था. या तो टीचर के ऊपर रिलाई करो या दोस्तों के ऊपर या ट्यूशन के ऊपर. आजकल बहुत दोस्तों से. That too is a little bit conceptual. Everything is conceptual, but that is like conceptual in mathematical terms. There, maths textbooks के बाहर questions नहीं आते. And I am only talking about school level. Other than your textbook, NCERT textbook, there will be not a single question which will be out of the textbook. So if you solve everything from your textbook, exercise, miscellaneous and solved example, किताब में ना solved examples, वो सारे अगर तुमने कर लिए, हो गया, तुम्हें 100 में 100 मिल जाएगा. हाँ, तुम उसके लिए आर्टिशन में उठा सकते हो, क्योंकि उसका क्वेश्चन का आंसर आर्टिशन में होगा. जब एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक और क्वेश्चन कर लिया, और अच्छी बात है. That's up to you. How much of time you are putting into it. That's class 12 का approach. अभी clear होने? Sure. चलो, केमिस्ट्री शुरू करते हैं. नाम की क्या बात है? विशांत है? Sorry? Ajish. Done. So let's talk about class 12 chemistry. So chemistry and okay, हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? यहाँ पे 2 अप्रोच किया जाएगा. This is your book 1. This is your book 2. It's okay. There are 2 books, first book and second book. Okay. Remember, you will be focusing more here. ये easy है. It's much easier than book 2. ठीक है. अगर कोई बोलता है book 2 hard है, झूठ है. Book 2 hard नहीं है. Book 2 is organic. Now let me explain you something about organic and something about your first physical and inorganic. Let's say our प्रथम chapter is what? Solutions. What's the second chapter? Electrochemistry. Correct? Solutions और electrochemistry का direct connection कुछ नहीं है. और interlink है, क्योंकि electrochemistry में भी एक solution जाता है. Interlink है, एक दो चीज मिलेगा, लेकिन electrochemistry complete different concept है. Solutions complete different concept है. Solutions अगर इसके बारे में बात कर रहा है, electrochemistry उसके बारे में बात कर रहा है, same नहीं है. Got it? But organic is one single chapter. Organic is one single chapter. That is where people go wrong. You cannot treat organic as chapter to chapter to chapter. नहीं कर सकते. For example, एक question आता है organic में conversion. इथेन लेते हैं, मान लो. इथेन को बनाना है इथानॉइक एसिड. इथेन इज क्लास 11 का चैप्टर, एल्केन्स. करेक्ट?
इथानोइक एसिड इज योर सेकंड बुक्स लास्ट ऑर्गेनिक चैप्टर, सेकंड लास्ट ऑर्गेनिक चैप्टर। तो तुम्हें क्लास 11 से कनेक्शन लाना है क्लास 12 के थर्ड चैप्टर में। तो तुम्हें लगता है डायरेक्ट जा पाओगे? नहीं, तुम्हें वहां से हेलो एल्केन होके अल्कोहल होके वैसे जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन एक ही चैप्टर करके तो नहीं पढ़ा सकते ना सिलेबस को, इसलिए सिलेबस को तोड़ दिया गया, they have segregated it out. But organic will not study as different units, will study as one big chapter. समझ में आया? will study the whole organic as one big chapter. जब सारा ऑर्गेनिक का माजरा दिमाग में घुस गया, फिर चैप्टर में क्या है बात करेंगे। समझ में आया? Now, when it comes to mark segregation, do you know how much is in your physical inorganic and how much is in your organic? ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है? 60-40। Let's say, roughly बता। फर्स्ट बुक पे 60-40 है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ याद रखो, और करके चैप्टर क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है? तो यू कैन टेक दैट वेटेज 60 से 70% भी हो सकता है, कभी कभार 80% भी होता है। तो इफ यू सी द प्रीवियस ईयर का बोर्ड का पेपर, इस साल का, इसके आगे साल का बोर्ड का पेपर देखोगे, जहाँ पे और है ऑर्गेनिक के साथ उन्होंने इनऑर्गेनिक चूज किया। तो अगर तुमने सिर्फ फर्स्ट बुक कर लिया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट बी एबल टू आंसर 80% ऑफ द क्वेश्चंस, पॉसिबिलिटी, बट 60 to 70% मार्क्स इज गारंटीड फ्रॉम द फर्स्ट बुक। ठीक है, अभी खुद सोचो 80 में 70% मार्क्स कितना होता है? 80 में 70% मार्क्स कितना होता है? 80 का पेपर होता है ना तुम्हारा, नहीं 70 का पेपर, 70 का 70% मार्क्स कितना होता है? 40 में, दैट्स इट 50। सेकंड बुक तुमने छुआ भी नहीं, भूल जाओ। फर्स्ट बुक तुमने छुआ, परफेक्टली किया, कितना मिला? 50 मिल गया। स्कूल 30 में 30 तो दे ही देगा, ऑलमोस्ट नहीं देगा, करेक्ट? तो कितना मार्क्स आया तुम्हें 100 में? हाँ 70 ये 50-30 के बाद 150 है, लास्ट में 50-30 का तो लेटर तो वहीं पे आ गया ना, समझ रहे हो? We'll complete the first book in full details first. Again, I am not doing again. I am explaining you. I am not going to teach you as per your school curriculum. No. I am going to teach you for your boards exams. तो हम लोग सॉल्यूशन से शुरू ही नहीं करेंगे। सॉल्यूशन से शुरू कर देना तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, कल से नहीं जा रहा हूँ सत्ता क्लास वो हो जाएगा। I am not going to do that. Get used to it. Get used to me. Get used to the chemistry. जब वो पसंद आने लगेगा ना, फिर हम लोग सॉल्यूशंस में ढूंढेंगे, ठीक है? हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा सॉल्यूशन शुरू हो गया, यूनिट टेस्ट में सॉल्यूशंस आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो स्कूल में जो भी पढ़ा है उसको छाप के चले आना। ये मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी बोलूँगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा प्री बोर्ड्स के लिए, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बोर्ड्स के लिए। हम लोग का टारगेट ये है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट बुक, स्लोली करते रहेंगे, बीच में गैप देके थोड़ा ऑर्गेनिक में चले जाएंगे, थोड़ा ऑर्गेनिक का 1-2 कॉन्सेप्ट कर लेंगे, फिर वापस फर्स्ट बुक में चलेंगे। लेकिन फर्स्ट बुक पहले खत्म करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक खत्म करेंगे, फिर फर्स्ट बुक का रिवीजन करेंगे, फिर ऑर्गेनिक का रिवीजन करेंगे, और ये सब नवंबर से पहले खत्म हो जाएगा, दिसंबर मैक्स। अगर खत्म हो गया उसके बाद तुम लोग खुद से पढ़ो, यहाँ पे टेस्ट डालो, कैसे आंसर्स लिखने हैं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू इन एन एग्जाम, आई विल टीच यू एवरीथिंग। क्लास 11 में कंप्यूटर सिस्टम, क्लास 11 में सिस्टम ऑफ डाटा, क्लास 12 will be a complete different system. 11 में प्रथम में you need to pass, get the concept, get the marks, pass। सुनने में बुरा लग सकता है कि सर सिखा रहे 50 से पास करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 matters। बट हाँ, when it comes to competitive exams 11 में भाई कैटेगरी क्वेश्चंस है, क्योंकि सबको पता है, इवन एनसीईआरटी, इवन एनटीए सबको पता है कि वो 11 पढ़ता नहीं है बच्चा, 12 को रिसेंटली पढ़ के एग्जाम देने आया है, तो उसको 11 के क्वेश्चन पूछो, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, समझ में आया? तो फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक, तो डू यू नो व्हाट इज द फिजिकल एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? जानो ने कौन की है? फर्स्ट बुक फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन, दैट इज फिजिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
फिजिकल, टाइप्स ऑफ काइनेटिक्स फिजिकल, ठीक है। फिर डी ब्लॉक एफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक, कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक, understood? Second group we have haloalkanes and haloids, organic, alcohol, phenols and ethers, organic, carboxylic acid, organic, then amines, organic, understood? Then we have biomolecules, which is part of organic, ठीक है। Biomolecules is one chapter, किंतु बायोएसिड का डिटेल और अभी तुम लोगों को नहीं मिलेगा। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? बायोमोलिक्यूल्स क्या हो? जो बायोलॉजी में मिलने वाला केमिकल मॉलिक्यूल है उसको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, सिंपल टर्म। तो मेरे हाथ में चल रहा है, व्हाट इज दिस थिंग मेड ऑफ? ये तो केमिकल कंपोजिशन होगा ना, कोई एटम तो होगा, ठीक है। तुमने चीनी खाया, शुगर है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? वो केमिकल एस्पेक्ट समझा। तो दैट वन चैप्टर आई विल टीच यू, आई विल गिव यू द नोट्स, लेकिन वो रीडिंग करना शुरू कर दो तुम। उसमें कुछ खास नहीं है, उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समझ गए? इस चैप्टर में फर्स्ट बुक में सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर में है पता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स। सेकंड कोऑर्डिनेशन, हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, देन वी गो बैक टू सॉल्यूशंस, काइनेटिक्स, डीएनए ब्लॉक। DNA block will have the least weightage if you compare the rest of the chapters. ये breakdown आराम से नेट में भी अवेलेबल है, निकाल लो, समझ गए? ऑर्गेनिक में जाते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज है कार्बोक्सिलिक एसिड पे, हर चैप्टर। लेकिन तुम सिर्फ ये सोचो ठीक है मैंने फर्स्ट चैप्टर पूरा रट लिया, पूरा सब कुछ मुझे पता है, 50 में 50 नहीं गया, मैं सिर्फ कार्बोक्सिलिक पढ़ के चला जाता हूँ, 85 तो मिल ही जाएगा। अगर वो सोच के जा रहे हो ना, उसमें भी लड्डू मिल जाएगा। व्हाई? Organic is one big chapter. तुम उसको चैप्टर टू चैप्टर ट्रीट नहीं कर सकते। तुम्हें मार्कोनिकोव रूल नहीं पता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी तुम्हें बंद देगा, सिंपल सी बात। अभी मार्कोनिकोव रूल क्या है नहीं पता, कहाँ पे था? 11 में था, जरूरत कहाँ हुई? 12 में हुई। तो दैट इज व्हाट ऑर्गेनिक इज। भले 11 में पढ़ने का मन मुश्किल है, जो तो मुश्किल 12 में कम है। फॉर एग्जांपल द चैप्टर 1 11 का वो बहुत जरूरी होता है, मोलारिटी वो सब सिखाया जाता है। और तो कुछ লিখিও লাগিছিলে কান্টি যেটা পিছত কেমিস্ট্রি পড়িবে এখিনি यूज করা যায়, এখানে तो ठीक है ले ओके ये तुम्हें बाद में चाहिए होगा, पहले सीख लो ये होता क्या है। दैट वाज डन इन क्लास 11, ठीक है। लेकिन क्लास 11 को कोई सीरियस नहीं लेता, मुझे पता तुम लोगों ने भी नहीं लिया, कौन दे तुम लोगों ने? मैं खोसा होता कोई यूजर আমার টাকি ক্লাস 11 এর জিও রোল পাহাড় যাবার ক্লাস 12 এর ওটা এডিশনাল পিয়ার প্রেসার আছে। এন্ড 11 এর রেজাল্ট তো কি হয় খুবই বলে ফোন না मैट्रिक दिए ना, मैट्रिक का रिजल्ट दिया था, मैट्रिक का रिजल्ट दिया था, कितने लोगों का फोन आया था जो तुम जिसके बारे में तुम जानते भी नहीं हो, जो तुम्हारे खानदान का भी नहीं, उसका भी फोन आया होगा। क्या हुआ? ऐसे नहीं सेम বস্তু তো 12 তো রাতে মানুষ আছে খালি গিয়ে না তো রেজাল্ট রিজাল্ট ভালো করে ভালকে বই দেখি লাস্ট পাবি কোথায় কয়তো লাস্ট পাবি পলাই দিবি খাই গুনে দেখা তো पेरेंट्स है। ठेकाने पेरेंट्स इस बार तुम्हें छोड़ेंगे, वो लोग भी एडिशनल प्रेशर देने वाले, पेरेंट्स दे, टीचर दे, एग्जाम सिलेबस देगा, ठीक है। तुम्हारा खुद का प्रेशर है, ट्यूशन ले रहे हो वो भी प्रेशर देगा, मैं प्रेशर दूंगा, तुम्हारा कुकर बनने वाला है। अगर चैनलाइज अभी से नहीं किया ना बहुत बुरी हालत होने वाली है। अगर चैनलाइज कर लिया ना बिंदास कर सकते। इफ यू डेडिकेटेडली गिव 3 months, डेडिकेटेडली गिव 3 months, इट इज मोर देन इनफ फॉर टू। मैं कभी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस इज पॉसिबल। दिसंबर जनवरी फरवरी, अच्छा नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीना तुमने अगर डेडिकेटेडली 12 को दे दिया ना, फिर भी तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं वो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि सबका कैपेसिटी नहीं होता वो। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल मैक्सिमम कितना घंटे पढ़े हो तुम किसी भी दिन, एग्जाम के आगे दिन कुछ भी मैक्सिमम इवन घंटा पढ़े हो 7 कोई खराब है तो भले 6 hours 15 hours बिफोर एग्जाम 15 hours में बचा क्या है भाई? बस
खाना पीना हो गया, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। मैं इसका कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ। चलो ठीक है, गुड, वेल डन। दिस इज बिफोर एग्जाम, ठीक है, दैट्स डन। सिचुएशन 2, एग्जाम को 2 महीने है मैक्सिमम टाइम। हाँ, हार्डली वाला, हार्डली 2 hours नपरे मैक्सिमम टाइम तो नपरो मैक्सिमम टाइम है, तो मैं जानू मैक्सिमम नहीं मन पड़ेगा। घंटा, 1 घंटा, साधु 1 घंटा, ये होता है कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम। अभी तुम यूपी बिहार चले जाओ, एक बंदा ना 18 घंटे पढ़ता है रोज, मुफ्त देखा वैसे मेरे स्टूडेंट भी रहे 18 घंटे रोज। वो 6 घंटे में वो सोता है, नहाता है, खाता है, पीता है, घूमता है, वही 6 घंटे। 18 घंटे पढ़ सकता है वैसे। We notice people are not made for that. ठीक है, तो you need to work smart. If you don't start your habit from now onwards, तो बाद में 10 घंटा कंटिन्यूअस पढ़ना मुश्किल है। कोई खाना और पारी की प्रेशर रहता है। But you have to build your habit from now onwards. यू जाने दो, अप्रैल का महीना थोड़ा मजे कर लो, हल्की पूरी पूरी करो। मई से रूटीन मान लेना कि मुझे रोज 1 घंटा पढ़ना, और उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाओ। एवरी 2 days, एवरी 3 days, एवरी 4 days का रूटीन बनेगा। जैसे एवरी 5 day, फर्स्ट वीक 1 हफ्ता में 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ूंगा मिनिमम। हो गया छोड़ दो। नेक्स्ट वीक वो 1.5 घंटा 2 घंटा बनेगा। जेतिया लगे बॉडीटोৱে সেই 2 ঘন্টা ল'ব পৰা হ্যাবিট নবনাই, you will continue with that time. Suddenly যদি 6 ঘন্টা জাপ মাৰি দিও ন, মাহঁতৰ কথা শুনি, বেলেগৰ কথা শুনি, ঈশান ছাৰৰ কথা শুনি, ছাৰে তো বম বকে। যদি সেইবিলাক শুনি পেলাই ডেইলি 6 ঘন্টা ডেইলি জাপ মাৰি দিও, এইটোৱে ইকো কেপাচিটি নল'ব। I hope you know how the brain works. Brain works on repetition. जो एक चीज बार-बार रिपीट होता है उसके साथ ये इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। ऑल ऑफ यू हैव अ फोन, वॉलपेपर की है जाना, फोन पर वॉलपेपर की है जाना, तुम्हें पता है? हाँ, लेकिन पता तो है पुराना वॉलपेपर में क्या था, अभी नया वाला में थोड़ा है। बॉक्सिंग ना छोड़ो, वॉलपेपर डालो। कैसे रट्टा मारा था, कैसे हुआ? এই যে টেবুলৰ সন্মুখত যেতিয়া পুস্তক চিপকাই কি কাম কৰে, তো টেবুলত যে পঢ়ো নেকি নপঢ়ো না ৱালখনত যায়, nobody goes to the wall and reads. What does that have? Repetition. Reminds no, এটা বস্তু যেতিয়া সদায় চাই থাকিবি ন, সদায় চাই থাকিবি ন, you don't have to remember it. It will get stored in your memory. तुमने मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, तुम्हारे पास नोट्स है, तुमने बहुत बड़ा एक चार्ट पेपर बना लिया, सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें लिखा हुआ है। उसको अगर तुम 2 मिनट या 3 मिनट रोज फोटोग्राफ जैसा देखते हो, पढ़ते भी नहीं हो, 1 साल का रोज चिपक जाएगा यार। That is how a brain works. Why I am telling you? If you strictly dive into 6 hours, कुछ नहीं होने वाला। 1 घंटा उसको हैबिट बनवा लो, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। But you don't have that much of time. You have to read 6 hours by July, August. अगर easily पास होना है तो अच्छे मार्क्स के साथ, तो शुरू कर लो 1 घंटे से, 1 हफ्ता 1 घंटा, जैसे 1.5 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो। क्योंकि now the question arises, मुझे कैसे पता है कि मेरा ब्रेन एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं, कहाँ रुक गया, कैसे पता चलेगा? ना तुम पढ़ रहे हो, किताब में बैठे हो, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तुम कंफर्टेबल हो या ब्रेन में कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? Distractions. When you start with 1 hour, first you have to remove distractions to make him comfortable in 1 hour. ठीक है? तब वो 1 घंटे के लिए ऑटोमेटिक कंफर्टेबल हो जाएगा। 1 घंटे बाद once 1 hour, when you increase your time, वो डिस्ट्रैक्शन जहां आने लगेगा वहां ही रुको। अगर वो पुराने टाइम लाइन से ज्यादा है, उठी उसी रुको।
खुलिए, ये फोन बोलिए, वीडियोस अभी जी को बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. You need relaxation, he needs relaxation to recover. Understood? বঢ়াই যায় আৰামত 6 ঘণ্টা কৰিব পাৰিবি, তুমি গমেই নাপাবি কেতিয়া 6 ঘণ্টা কৰিবি. But if you think कि मैं ये जुलाई से शुरू करने वाला, कभी नहीं होगा. शुरू करो 1 घंटे से, उसको 6 घंटे तक लेके जाओ. इसको बेवकूफ बनाया जा सकता है. पूरे रात একেলগে 6 ঘণ্টা চাকৰি কৰিব. সেইকাৰণে পৰীক্ষা দিনা কি হয় জানো? পৰীক্ষা দিনা টোপনি ধৰে, কিবা কৰে, এণ্ড দেন when the exam is over কি ভাবো আজি তো ঠিক से শুম, आज तो मैं पूरा सोऊंगा, नींद आती है उस दिन. क्यों? ब्रेन का हैबिट बनवा लिया ना तुमने. इतने बजे उठना, इतना घंटा पढ़ना, इस टाइम में कंसंट्रेशन होना है. तुम्हारा 9 बजे एग्जाम है, ब्रेन सुपर एक्टिव बैठा हुआ है वहां पे, कहां सोएगा वो? उसी चीज को थोड़ा लंबे पीरियड के लिए करो. हो गया 6 घंटा, क्या प्रॉब्लम है? आराम से हो. अगर उसको मेंटेन करते हो ना, क्या है you will have your recreational life. अभी तो पढ़िए सो, if you are studying, parents तो कुछ बोलेगा नहीं, समझ में आया? लेकिन जो भी पढ़ी থাকা নাই, এখানে মায়ে हल्ला করে दो, पापा चिल्लाने लगे कि तुम लोगों को तो धुलाई पड़ती नहीं, हम लोग को तो धुलाई भी पड़ती थी. मतलब तो मारते होते पैसे ने तो पैसे तो ठीक है फाइन. तो हेबला को करे तो जिने দেখা পাইছে লৰা তো পঢ়ি আছে, কষ্ট কৰি আছে, meanwhile is taking 1 hour of break. Nobody is going to say nothing. थोड़ा थोड़ा है. Few things I am telling you, this is not related to chemistry, but this is very important. I hope we are clear how we are going to study chemistry. ठीक है? सा पारीले ढाल. My suggestion, there are people who will be preparing except for boards. पारीले ढाल is good. But remember, even if you top your grades, but you don't get 75% in your boards, no college, no IIT is giving you everything. तुम्हें 75 तो लाना ही लाना है. तो boards और priority किसी हो, entrance और com. Actually की है, when you go into the coaching industry क्या करता है? वो full on deep concept में यहाँ से नवंबर तक वो तुम्हें कोचिंग का सिखाएगा. That is entrance का. नवंबर में बंद हो जाएगा, फिर वो स्कूल में उसी चीज को स्कूल लेवल में लेके आएगा. That is integrated course how it works. ठीक है? But that thing is good. मैं बुरा नहीं बोल रहा. That's a good thing. That has given results. But that is available for boards. Someone who is not able to get down into boards. For example, now I also teach deep. अभी एक क्वेश्चन है, मान लो which of the following is the smallest of the atom. ठीक है? 2 मार्क का क्वेश्चन है. एंट्रेंस में भी 2 मार्क का है, बोर्ड्स में भी 2 मार्क का क्वेश्चन है. एंट्रेंस में क्या करना है? एक को गोला कर देना है सर्कल. आगे देखो. बोले बोर्ड्स में तुमने लिख दिया सोडियम, लड्डू मिलेगा भाई, 1 मार्क मिलेगा, आधा मिलेगा. क्यों? तुम्हें उसने लिखा पड़ेगा सोडियम बिकॉज़ ये है, वो है, ये है, वो है, लिखना पड़ेगा. तो बोर्ड्स का आंसरिंग तुम्हें ऐसे करना है कि जो चेकर बैठा हुआ है, मान लो गधे से गधा है, उसको केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, उसने एक क्वेश्चन पूछा है, तुमने वो क्वेश्चन आंसर में समझाया है. वो किसी को भी आर्ट्स के स्टूडेंट को भी पढ़ा दो तो उसको समझ में आ जाना चाहिए. अच्छा इस क्वेश्चन का मतलब ये है, उस टाइप का आंसर लिखना पड़ेगा. That you have to detailedly explain what is happening, what is not. Then that comes word limits. When you are there in CBSE, there are word limits. ज़्यादा भी नहीं लिख सकते. सेवा वाले तो खराब लिख दो. उसको स्टोरी लिखना होगा. CBSE में नहीं. तो there is where the difference is there. Concept is not different. तुम जो सीखोगे वो भी वही सीखेगा. समझ में आया? अगली बार we'll deal each and every aspect of that science. कहाँ प्रॉब्लम होता है, we'll deal with that also. But I'm just giving you an overall overview of building. ठीक है? आज क्लास शुरू नहीं करेंगे, चलो पढ़ लेना. मैं सिर्फ वेटेज का बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट का बात कर रहा हूँ, कहाँ से कैसे शुरू करना उसके बारे में बात. ठीक है? तो we'll give priority to book 1. That does not mean book 2 is out of the syllabus. No. We'll give priority to book 1 to secure your respectable marks. ये भाई 70 मिल गया तो कम से कम तुम गाली खाने से बचो.
उसके बाद उसको 70 को 85 क्या बनाना है वो मेरी ड्यूटी है। 70 से 80 में ले जाओ, 80 से 90 प्लस ले जाना तुम्हारा ड्यूटी है, मेरा नहीं है। 70 को ये दूंगा, मूल गारंटी 70 मैं दे दूंगा, कैसे आंसर करना है क्या करना है मैं बता ही दूंगा, वैसे पढ़ लो 70 मिल जाएगा, उसके बारे में सोचो ही मत। इफ यू आर देयर विद मी होल दिस ईयर 70 मिल जाएगा, लेकिन 70 से 90 कैसे रहना है वो तुम्हारा मेहनत है। मैं हूँ लेकिन वो मेहनत तुम्हारा। सो दैट मींस व्हाट, इवन यू आर टेकिंग ट्यूशंस एंड एवरीथिंग यू हैव टू गिव टाइम टू सेल्फ स्टडी, अदरवाइज इट्स पॉइंटलेस। तुम लोग के पेरेंट्स अभी तुम लोग बड़े हो चुके हो, तुम्हारे पेरेंट्स को इतना समझाओ कि मुझे इतने ही ट्यूशंस चाहिए, इतने टाइम में, हफ्ते के 7 दिन में एक दिन खुद के लिए ब्रेक रखना, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, इतना दिन ब्रेक लो, ना 1 घंटा वाला ट्रेनिंग, ना 1 घंटा वाला पढ़ाई, ना ट्यूशंस, कुछ नहीं करना मुझे, जी करो करेंगे, दैट विल स्टॉप फ्रॉम जुलाई। एटलीस्ट एटा दिन नो ट्यूशन डे रखेंगे, एटलीस्ट एटा नो ट्यूशन डे। जुलाई है, जुलाई से वो जो एक दिन फ्री है, ट्यूशन तो होगा ही, उस दिन भी पढ़ना शुरू करो। फिर तुम्हें ये देखना है कि जब तक जून अगस्त आ गया, मैं 6 घंटे पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने लिए 2 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा। वो तुम्हारा हॉबी के लिए हो, तुम्हारे स्पोर्ट्स के लिए हो, तुम्हें इंस्टाग्राम देखना है, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना है, जो करना है। Because if you don't have a recreation, this guy stops working. The most hated thing क्या होता है? सुबह स्कूल जाने में अच्छा लगता है? क्यों? कि रोज का एक ही नाटक है, ड्रेस पहन के जाओ, प्रेयर होगा, प्रेयर खत्म होगा, क्लासरूम, एक ही नाटक है। Repetition is the basic thing that the brain remembers. Repetition is one of those things which the brain hates. So what's about it? When the life becomes monotonous, ना लोगों को खुशी नहीं मिलती, कुछ नया चाहिए, तो थोड़ा एक स्पार्क रखो अपने को। 12 में हो, जेल में नहीं, समझ में? ठीक है? तो एक छोटा गोपन बुक क्लियर, वेटेज क्लियर, हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच क्लियर। जी दरकारी नोट्स আছে মই লিখাই দিম। First thing, we'll give you those notes. We'll practice a few questions in order to understand the chapter. We'll complete the chapter. We'll complete the NCERT necessary questions. We'll move ahead. Once the whole book is finished, we'll restart the chapters. Then I'll give you sample DBB practice papers. उसको भी डिस्कस करेंगे। Similarly, वो ऑर्गेनिक के साथ भी होगा। जो नोट्स मैं लिखा के नहीं दूंगा, उसका मैं प्रिंटेड वर्जन दूंगा। क्योंकि कुछ नोट्स बहुत लंबे हैं, उसको लिखाने से बहुत टाइम लग सकता है, तो तार प्रिंटेड वर्जन्स के लिए दैट इज अप टू मी। इसका मतलब ये नहीं है कभी भी तुम अपना एक स्टाइल ऑफ स्टडी होता है उसको चेंज करो। सबका एक स्टाइल होता है स्टडी करने का। फॉर एग्जांपल नॉइज में पढ़ो, व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, व्हेन आई यूज्ड टू रीड, मुझे टेबल में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बिस्तर में तकिया लगा के ऐसे पढ़ के बहुत मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, उस मतलब हर बंदे का एक स्टाइल होता है। किसी को लिख के पसंद है, किसी को रीडिंग करके पसंद है, किसी को सोच के पसंद है। एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्टाइल। रिमेंबर नेवर टू चेंज दैट। व्हाई? बिकॉज़ दैट इज योर स्ट्रॉन्ग रोल। तो जानो चाहे हेतु वस्तु दिए तो आज 11 वाली 12 वाली समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग। उसको चेंज मत करो, लेकिन कुछ हैबिट्स जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैथ्स, यू हैव टू प्रैक्टिस, that will eliminate silly mistakes. You have to practice your numericals, but you have to memorize your theories. Memorize the theory. तुम रट्टा मार रहे हो, जरूरी नहीं कि लिख के करो। किसी का होता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जैसे मेरा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन पेपर में मैं खुद का लैंग्वेज से लिखूंगा। किसी का वो होता है, और किसी का होता है कि मैं डेफिनेशन ही रट्टा मार के जाऊँ, उसको चिपका दूंगा। Wherever you are strong, hold to that. If you want to memorize the definitions, go ahead. If you think that I will understand the concept and write it on my own language, go ahead. But make sure whatever you are doing, 5 में से 5 मिल जाए। बुझी गई? When we have a series of mock tests, then we will discuss that कहाँ पे किसका writing का issue है। That will clear also you. समझ में? ठीक है। जब की बात हम लोग सुनने तो बहुत ज़रूरत है, 0 ना रीडिंग रिलेटेड
इस बात आप बुझाइए सिर्फ समझा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें इलेवेंथ का कौन सा वो मैं सिखाऊंगा मेरे पे छोड़ जहां पे भी 11 का कॉन्सेप्ट आएगा वो भी मैं सिखाऊंगा वो मेरे पे छोड़ उसके बाद भी प्रॉब्लम आया ना तो मेरा आके साथ खाना मैं अपना नंबर सबको दे दूंगा इनके पास से ले लो नो प्रॉब्लम उसका वो मेरे पे छोड़ो तुम यहाँ पे हो ना यू आर बीइंग हियर योर पेरेंट्स आर पेइंग समथिंग फॉर दैट यू लीव दैट टू मी तुम्हारा काम है पढ़ना पढ़ते रहो समझ में नहीं आया टीचर लगा कि मैं सब सिखाऊंगा कर लो कोई नहीं नोबडी इज गोइंग टू से नथिंग ठीक है तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस वी जस्ट गोइंग टू डिस्कस ओवरव्यू ऑफ इट फर्स्ट थिंग फर्स्ट मोस्ट थिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या तुम जो भी तो खुद ही रहे जैसे somebody ask you ये भाई ये चैप्टर तुम पढ़ क्यों रहे हो क्या बोलोगे वो बता पहले जानो है आइडिया ऐसे की का चैप्टर उल्टा से पेज के ऊपर की देखा पेश पढ़ना नहीं ऐसे पढ़ लो फोटो दिखेगा कुछ दिखेगा देखो पुराना होते तो क्या बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड स्टेट्स में पढ़ लो पलट के क्या लगा दिया कहीं पे बबल निकला हुआ है कहीं पे इक्वेशंस है कहीं पे कुछ है कहीं असील है तुम पूछ सके सॉलिड स्टेट नहीं सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर एक ही बुक है चैप्टर एलिमेंट सॉलिड स्टेट में मेटलर्जी के लिए चैप्टर रहता है नाइन फील्ड ऑफ के लिए चैप्टर रहता है क्या समझ में आया क्या दिखा तुम्हें फोटोज में साथ उल्टा हल्के उल्टा देखा बची उल्टा वास्तव में कसम हामी सानी बाकी देखा मैं सो वास्तव में क्या दिखा केमिकल रिएक्शन में जो लास्ट में क्या लिखा बैटरी ये चैप्टर तुम्हें ये सिखाता है कि भाई एक बैटरी कैसे बनते हैं एक बैटरी कैसे बनेगा so this chapter will teach you how to make a battery while making a battery what are the things that we should know what are the things that we have to use कौन सा चीज यूज करने से क्या इफेक्ट आएगा ये चेंज कर देने से क्या होगा क्या नहीं होगा वो सिखाएगा ये चैप्टर तो बेसिक आइडिया क्या है बैटरी बनाना बैटरी करता क्या है व्हाट डज अ बैटरी डू पावर डी मतलब क्या देता है इलेक्ट्रिसिटी देता है उसके अंदर क्या जनरेटर फिट है नहीं है ना तो कहां से आ रही इलेक्ट्रिसिटी अंदर क्या होगा केमिकल्स होगा पानी में नहीं रहा है ना है कि नहीं तो ये सिखा रहा है कि केमिकल्स इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा कर सकते हैं हेंस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आया जब ये समझ में आ जाएगा ना ऑटोमेटिकली समझ में आया अच्छा ये नाटक तो इस सेक्शन में तुम्हें ये भी सिखाया जाएगा कि किस महापुरुष ने क्या क्या काम किया था इसका क्या इफेक्ट है ठीक है तो मैं बता रहा हूँ सिंपल सी बात है एक बैटरी छोड़ो आई एम नॉट गोइंग टू दैट बैटरी में क्या दिखता है तुम्हें एक होता है पॉजिटिव एक होता है तो मुझे अगर एक बैटरी बनाना है इसके अंदर मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है ठीक है नेगेटिव किस चीज से मिल सकता है केमिस्ट्री में नेगेटिव किस चीज से मिल सकता है इलेक्ट्रॉन्स तो मान लो अगर यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन भर्ती कर दिया नेगेटिव हो गया ना पॉजिटिव किस चीज से मिल सकता है प्रोटॉन्स तो नहीं तोड़ सकते रिमेंबर when you are talking about an atom let's say this is an atom correct or not this is the nucleus nucleus के अंदर क्या है प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है बाहर क्या है इलेक्ट्रॉन्स केमिस्ट्री इसके अंदर नहीं घुसता है chemistry never goes inside the nucleus that is physics and it समझ में आया
कभी भी केमिस्ट्री ये नहीं बोलेगा कि न्यूक्लियस से कुछ निकल के आएगा। हाँ, इसकी वजह से अट्रैक्शन रिपल्शन हो सकता है, वो अलग बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, अट्रैक्शन रिपल्शन हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री ये नहीं बोलेगा कि यहां से प्रोटॉन चिपका हो जाना, नहीं बोल सकता, उसके पास वो पावर नहीं है। तो केमिस्ट्री को एटम से निकाल फेंकने के लिए क्या है उसके पास? खाली इलेक्ट्रॉन्स। एवरीथिंग इन केमिस्ट्री इज रूल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भर जाए, नेगेटिव मिल गया, पॉजिटिव कहां से मिलेगा? आयन से मिलेगा। जैसे सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा क्या? पॉजिटिव, सोडियम बच गया ना, वो उससे मिलेगा। ठीक है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तुम बैटरी बना दे, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें ये पता है कि पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, ठीक चाहिए कि नहीं? अभी हर बैटरी का एक वोल्टेज होता है कि इस फैन को चलने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, लेकिन घड़ी को चलने के लिए कितना? 1.5 वोल्ट चाहिए, 1.5 वोल्ट। मेरे मान लो जो पुरानी घड़ी होते हैं, छोटे बटन सेल होते हैं, उसमें 1 वोल्ट से भी वो घड़ी चलेगा, 1.5 वोल्ट से वो घड़ी चलेगा, 0.75 से घड़ी चलेगा। अभी मान लो मेरा एक वोल्ट क्लॉक है जहाँ पे 1.5 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ जिससे वो घड़ी चल रहा है, उसमें अगर 220 ठूस दिया, क्या होगा? वो फट जाएगा भाई, खराब नहीं होगा, फट जाएगा। ठीक है, और एक रेफ्रिजरेटर जिसको 220 वोल्ट चाहिए, उसमें पेंसिल बैटरी लगा दो, क्या होगा? नहीं चलेगा। तो पहले तो इसका मतलब क्या है? मुझे वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, करेक्ट? इसका पावर का डिफरेंस है। तो मान लो मैं ये बैटरी बना रहा हूं कि मोबाइल का पावर बैंक बने, समझ रहे हो? मोबाइल का पावर बैंक, मोबाइल डिवाइसेस कितने वोल्ट पे चलता है? 12 वोल्ट पे चलता है। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस कितना होना पड़ेगा? 12 वोल्ट। इस हिसाब से तुम्हें ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इतने ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इतने ही पॉजिटिव आयंस चाहिए, ये सब चाहिए होगा कि नहीं? वो सिखाया जाएगा यहाँ पे, किससे कितना वोल्ट बनेगा, समझ में? उसको ही बोलते हैं नर्नेस इक्वेशन। या उसके बाद है, इसके अंदर क्या है? केमिकल है। केमिकल है मतलब क्या है? उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, पावर रहेगा, रहेगा कि नहीं? कॉन्सेंट्रेशन पावर रहेगा, तो इसके अंदर जो लोचा बना हुआ है, जो अंदर सामान चिपकाया हुआ है, उसका मोलारिटी क्या है, मोलालिटी क्या है, क्या कॉन्सेंट्रेशन में है, क्या पावर में है, वो सब सिखाया जाएगा। समझ में? ये पॉजिटिव नेगेटिव जो बनता है, एक मेटल से बनेगा, बनेगा कि नहीं? क्योंकि नॉन मेटल तो नेगेटिव देगा ही नहीं, पॉजिटिव देगा ही नहीं, मेटल से बनेगा। कौन सा मेटल लेने से तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन सा लेने से कितना वोल्ट मिलेगा, वो सिखाया जाएगा। ठीक है, अभी अंदर एक लिक्विड है, मान लो दिखा ना ड्राइंग में, लिक्विड होता है जो मेटल को पॉजिटिव नेगेटिव दे रहा है, ठीक है? तो ये लिक्विड जब इस इलेक्ट्रोड को पावर करेगा, कितना एफिशिएंटली पावर करता है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कितना टाइम तक ये पावर कर सकता है, वो सब सिखाया जाएगा। सो वी सेग्रीगेट द होल चैप्टर इनटू पार्ट्स। तो फर्स्ट थिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टीचेस? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टीचेस यू हाउ टू मेक अ बैटरी। बैटरी बनाने के लिए क्या चाहिए? मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बैटरी इलेक्ट्रिसिटी देता है, कहाँ से बन रहा है? केमिकल से बन रहा है। जो केमिकल्स गिविंग यू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, what is the first cell? Cell, that is battery is called a cell. What is the first cell that was actually made, जो सक्सेसफुल हुआ था? उसका नाम पता है? उसका नाम है डेनियल सेल। The first actually usable cell बैटरी जो बना था, उसका नाम है डेनियल सेल। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से डेनियल सेल बनाएंगे, उसमें कैसे पावर आए पहले उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उसका जो थ्योरी एस्पेक्ट है वो भी लिखेंगे, उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे। समझ में? बुझिए? चलो एक हेडिंग दे थ्योरी क्वेश्चन से ही बात देखिए, वो क्वेश्चन कितना दीजिए, बस हेडिंग दे दो, उसका आंसर्स कर दे दो। Question number 1. Explain the following. Explain the following. What is a Daniel cell?
what is a valence cell? Direct valence cell लिखो, short of it, valence cell. बोले? Number 2, electrodes. Electrodes, electrodes, electrode potential. Number 3, electrode potential. धातुक. When I am dictating full speed में लिखो, spelling बाद में ठीक कर लेना. Electrode potential. Next, cathode, anode. Next, standard electrode potential. Electrode potential. हो गया? Next question. Question number 2. How can we measure standard electrode potential? How can we measure standard electrode potential? Well, next question. Star वाली लिखी हुई, explain Nernst equation. Explain Nernst equation. NERNST. मानो नाम कैपिटल है. Explain Nernst equation. Comma derive. এইটো পৰীক্ষাত নাহে, ষ্টাৰ এইকাৰণে বনাইছো, জাস্ট বুজাবলৈ লিখা. হ'ল নেক্সট Nernst, NERNST is mother tongue. Nernst equation. Next, derive the relationship between equilibrium constant and Nernst equation. Derive the relation between equilibrium constant and Nernst equation. Also explain Gibbs free energy and spontaneity. Also explain Gibbs, Gibbs, Gibbs free energy and spontaneity. This is the first part of the electrochemistry. ठीक है? Really? Doubt clear? Next part.